Good morning, all of you. As you know, our topic is going on indifference curve. Yesterday we studied about the characteristics of indifference curve. Of IC curves. As you know, the first characteristics of IC curve is it slopes downward. It slopes downwards. Downward slopes means negative slopes. The IC curve slopes downwards. It's an IC curve with slope downward because of monotonic preferences. Here I just mentioned monotonic preferences. What is monotonic preferences? Monotonic preferences refers to the situation where is a consumer just give the weightage to the more quantity. As the quantity increases, their total satisfaction will increases. तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या है कि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती है सेटिस्फैक्शन जो उसका एडिशनल सेटिस्फैक्शन है वो जरूर घटता है, लेकिन उसका जो टोटल सेटिस्फैक्शन है वो हाईएस्ट होता है. तो इसीलिए the IC curve slope downward because of monotonic preferences. The second thing is it convex to origin. An IC curve is convex to origin. This is the origin point. This is the shape which is known as the convex. An IC curve is convex to origin because of marginal rate of substitution, MRS. That is marginal rate of substitution. Okay, MRS means marginal rate of substitution. It refers to the rate on which a consumer, if he wants to increase the quantity of a commodity in place, he sacrifices the quantity of the another commodity. MRS states that if a consumer wants to increase the quantity of a commodity, he sacrifices the units or number of the quantity of another commodity. यानी यदि कंज्यूमर x की क्वांटिटी को बढ़ाना चाहता है, x1 से x2 पर जाना चाहता है, तो क्या देख रहे हैं, उसे y की क्वांटिटी को डिक्रीज करना पड़ेगा. ठीक है. सो इफ ही वांट्स टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ x, he will sacrifice the unit of y, but the rate of sacrifice is diminishing. हर बार वो पहले की तुलना में कम sacrifice करेगा. ठीक है. दिस इज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. थर्ड जो हमने कल पढ़ा था दैट इज एन IC कर्व नेवर टच एक्सेस. जो IC कर्व्स होते हैं वो कभी भी एक्सेस को टच नहीं करते. अब कैसे नहीं करते? मान लीजिए आपका IC कर्व है, गुड x यहाँ पर, y गुड यहाँ. इट्स योर IC कर्व, वी नेवर टचेस द एक्सेस. कभी भी एक्सेस को टच नहीं करते. इफ दे टच एक्सेस, अगर वो x को टच करते हैं, एक्सेस को मान लीजिए A पॉइंट पे कर रहे हो, B पॉइंट पे, if they touches the axis, if they touch the OY axis, here the good x is 0. If the curve touch the OX axis, here the good y is 0. So it is not according to the definition which says the IC curve shows the combination of two goods. If they touches the axis, it shows only the quantity of single good. So it is not according to the definition. ये definition के according नहीं है. So ये इसकी क्वालिटी है कि वो एक्सेस के बहुत पास हो सकते हैं, लेकिन कभी भी एक्सेस को टच नहीं करते. Now the fourth, NICs intersect, never intersect each other.
intersect each other. जो आईसी कर्व है कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते. अब देखिए कैसे नहीं करते. यहाँ हमने y good लिया. I just taken x good here on our axis. It's your IC1. It's IC2. The interference curve never touch the axis. If they touches the axis, अगर वो they never intersect each other, because if they intersect, two IC curve intersect each other, there will be a point. वहाँ पर एक पॉइंट होगा which give the equal level of satisfaction. यानी जब दो IC कर्व एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो वहाँ एक ऐसा पॉइंट हो जाता है जो इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को बताता है. जबकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि every higher level of interference curve give the higher satisfaction and the every lower one is give the lower level of satisfaction. अगर दो कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो ऊपर होगा, कोई नीचे होगा. तो every higher level gives the higher satisfaction. Then two interference curves never gives same satisfaction. कभी भी दो interference curve same satisfaction नहीं दे सकते. And the last one, higher IC gives high satisfaction. Okay? जितना ज्यादा हाई होगा, अगर कर्व जितने ऊपर होंगे उतना उनका सेटिस्फैक्शन का लेवल उतना ही ज्यादा होगा. जैसे जैसे हम नीचे आएंगे सेटिस्फैक्शन का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. फिर हम इंटरफेरेंस मैप के जिसमें भी देख चुके हैं. एवरी हायर लेवल ऑफ इंटरफेरेंस कर्व गिव्स द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. एवरी लोअर वंस गिव द लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द बजट लाइन. What is budget? Budget line. Budget क्या होता है? It is the account of expenditure and revenue. Budget किसे कहते हैं? जिसमें आपके आय और व्यय के खर्चे हैं. तो बजट लाइन क्या होगा? जिसके अंदर आपको रहना. ठीक है? So the budget line, अगर हम बजट लाइन की बात करें, it shows the combination of, it is OX axis, it is OY. ठीक है? यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये आपकी एक बजट लाइन है MN. यहाँ प्राइस ऑफ Y दे रखी है, यहाँ प्राइस ऑफ X दे रखी है. ठीक है? सो अ बजट लाइन शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स. किसी भी दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशन को बताती है. यहाँ पर आप गुड्स भी ले सकते हैं. OX एक्सिस पे हम देख रहे हैं, ये Y एक्सिस है. यहाँ पर हमने Y गुड ले ली और यहाँ X गुड ले ली. ये जो आपकी बजट लाइन है, इट शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स. ये उस दोनों ही गुड्स का, जैसे इंटरफेरेंस कर्व बताता है वैसे ये भी कॉम्बिनेशंस को बता रहा है. ठीक है? बट अ कंज्यूमर कैन ऑप्ट एनी कॉम्बिनेशन. कोई भी कॉम्बिनेशन तब ले सकता है व्हेन ही नो अबाउट द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज एंड देयर एक्सपेंडिचर इनकम ऑल्सो. So a budget line shows the combination of two goods. ये दोनों goods के combination को बता रहा है. Combination A, B, C and D. But consumer can opt the option in the situation when he knows about the price of the commodities and their income. यानी उसको अपनी income का पता है और यदि उसको price का पता है तो वो इसमें से कोई भी combination को opt कर सकता है. For example, if a consumer's income is 100 rupees. हम मान के चलते हैं कि कंज्यूमर की जो इनकम है वो 100 rupees है एंड प्राइस ऑफ X is 5 एंड प्राइस ऑफ Y is 10. ओके, हमने कहा हमें दोनों वस्तुओं की कीमत का पता है और आपकी इनकम का पता है. तो आप बजट लाइन कैसे बनाएंगे? ठीक है, बजट लाइन क्या होता है, हाईएस्ट कॉम्बिनेशन बता रही है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इनकम है उसमें X का भाग लगा देंगे. तो हमें पता चल जाएगा कितनी बार गया, 20 टाइम्स. तो हम 20 यूनिट्स किसकी खरीद सकते हैं, X की. हम 20 यूनिट्स ऑप्ट कर सकते हैं. तो ये हो गई 20X. और अगर हम Y की बात करें तो 100/10. और इसकी कितनी खरीद सकते हैं, 10Y. ओके,
अब हमारी जो बजट लाइन बनेगी वो 20x और 10y के बीच में बनेगी। अब जो हमारी बजट लाइन है वो हम इस तरह से बनाएंगे। y हमें कितना चाहिए 10, तो हमने 2 का गैप लिया, और हमें ये चाहिए 20, तो हमने 5 का लिया। तो हमारी बजट लाइन क्या है 10y से 20x के बीच में बनी। ठीक है, ये आपकी बजट लाइन हो गई। इस तरह से बोर्ड में भी कई बार 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि आपको इनकम दी हो, प्राइस दे रखी हो, और आपको कहा जाए कि ड्रॉ अ बजट लाइन विद द हेल्प ऑफ गिवन न्यूमेरिकल एग्जांपल। आपको एक बजट लाइन ड्रॉ करनी है, आपको एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए, जो बजट लाइन होता है उसका जो स्लोप होता है उसे हम बोलते हैं द स्लोप ऑफ। जो बजट लाइन है उसका जो स्लोप है वो कहलाता है प्राइस ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ y। जो बजट लाइन का स्लोप है वो प्राइस ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ y के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अब हमने देख लिया, हमने इंडिफरेंस कर्व देख लिया विच गिव द इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड वी सीन द बजट लाइन ऑल्सो। ठीक है, अब आपके पास क्या आ गया, सेटिस्फैक्शन भी आ गया और आपके सामने बजट भी आ गया। नाउ वी जस्ट टॉक अबाउट द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, कि कंज्यूमर कहाँ इक्विलिब्रियम में होगा। जैसे हमने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि सेकंड स्टेज इज गुड फॉर अ प्रोड्यूसर, सो इट इज द ऑप्टिमम कंडीशन फॉर द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। जस्ट लाइक दैट हमने सेटिस्फैक्शन पढ़ लिया, हमने बजट लाइन पढ़ ली, तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कि कंज्यूमर कहाँ फुली सेटिस्फाइड होगा या कहाँ उसकी प्रोवाइड जो गिवन इनकम है उसमें उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अब देखिए, कई बार इसका एग्जांपल लेते हैं। हम मार्केट जाते हैं, ठीक है, शॉपिंग करने के लिए, तो हम क्या करते हैं कि चलिए ठीक है, बजट आपको पता है, अपनी जेब में पता होता है 1000 या 2000। हम शॉप के वाले के पास गए, हमें कोई भी बस एसेसरीज दिखाइए, वो आपसे पूछता है आपका बजट कितना है। आप क्या सोचते हैं मन में, हम बार्गेनिंग कर लेंगे, बजट नहीं बताते। ठीक है ना। अब मान लीजिए उसने 2000 का भी दिखाया, 3000 का, आपकी जेब में 2000 रुपए। जब आपको 3000 की कोई भी चीज है, क्रॉकरी है मान लीजिए, पसंद आ गई, आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको पता है आपका बजट 2000 है, आप उसे कहाँ तक कम करने की कोशिश करेंगे, 2000 तक लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो तैयार नहीं होता। ठीक है, 3000 की चीज को 2000 में दे रहा, तो 2500 की जो है 2500 की आप उसको 2000 में कराने की कोशिश करेंगे। तो आप उसी कॉम्बिनेशन को परचेज करेंगे जिसकी प्राइस, जिसकी जो कीमत है आपकी बजट में आने को तैयार है और आपको सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है, पसंद भी आनी चाहिए। इसी बात को हम डायग्राम से बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है क्या? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज द कंडीशन और द सिचुएशन वेयर कंज्यूमर गेट द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इन हिज गिवन इनकम। यानी जब आप आपकी इनकम, चाहे वो 10,000 है, चाहे वो 1 लाख है, चाहे 4 लाख, व्हाटएवर जो आपकी एक्सपेंडिचर इनकम है, उसमें आप क्या चाहते हैं, आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन वेयर कंज्यूमर just get the maximum satisfaction in their given income। यानी वो चाहता है कि जितना मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ उसमें मुझे हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन मिले। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इनकम, क्योंकि आपने अभी कहा कि वो अपनी गिवन इनकम में हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन चाहता है। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इनकम, क्योंकि मार्केट जा रहे तो आप अपनी पॉकेट में पैसे लेके जा रहे, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, बजट लाइन। OY एक्सिस पर हमने लिया गुड Y, I just taken good X on OX axis, emanates it's your budget line। हमने एक इमेजिनरी बजट लाइन मानी जिसे हमने MN कहा, ये तो हमारी इनकम हो गई। अब हमें क्या चाहिए, सेटिस्फैक्शन भी देखना है। सो NIC कर्व, वेयर NIC कर्व, जो भी IC कर्व है, दैट इज टच द एक्सिस, जहां पर
जो आईसी कर्व है वो एक्सेस को टच करता है, ठीक है, दैट इज योर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब देखिए कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है, ठीक है, यहाँ भी टच कर रहा है बी पॉइंट पे और यहाँ भी टच कर रहा है सी पॉइंट पे। इसके अंदर के कॉम्बिनेशन क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पर आपकी बजट है, यानी अभी आप और अटेंडेबल कॉम्बिनेशंस पर जा सकते हैं। अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है, डी पॉइंट है, ये आपका क्या हो गया, नॉन अटेंडेबल, ठीक है, इसको आप अटेंड नहीं कर सकते, नॉन अटेंडेबल। क्यों? क्योंकि ये बजट लाइन से बाहर है। बजट लाइन के जितने अंदर कॉम्बिनेशन होंगे, ई है मान लीजिए, एफ है, वटएवर कोई भी सिचुएशन है, वो कैसे होते हैं, अटेंडेबल कॉम्बिनेशंस होते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि वाई वी आर इन इक्विलिब्रियम ऑन द ए पॉइंट, हम इक्विलिब्रियम में ए पॉइंट पर क्यों होते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जहां पर जो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बजट का इनका है दैट इज पी एक्स अपॉन पी वाई, यानी जहां पर आपकी प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, जो उसका स्लोप है बजट लाइन का, वो बराबर हो, वहां पर आप क्या होंगे, वहां पर आप फुली सेटिस्फाइड होंगे। सो वेयर द बजट लाइन टच द इंडिफरेंस कर्व, जहां पर वो टच करती है वहां आप कहाँ होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। क्योंकि जिस तरह से प्रोड्यूसर्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज कि मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रोडक्शन करना, ठीक इसी तरह से एक कंज्यूमर का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि मिनिमम स्पेंडिंग, जो उसका खर्च तो वो क्या करे कम, और उससे सेटिस्फैक्शन क्या मिले, ज्यादा वहां पर मिले। सो दिस इज द situation which is known as the consumer equilibrium, where the consumer wants to get highest or maximum satisfaction in their given budget or expenditure income। वो चाहता है कि जितना भी पैसा है, जो 2000 अर्न कर रहा है वो 2000 में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता है, द पर्सन हु इज अर्निंग 10,000 1 लाख whatever, लेकिन वो क्या चाहते हैं, दे जस्ट वांट्स द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इन देयर गिवन इनकम। वो चाहते हैं कि हमारा जो सेटिस्फैक्शन हो वो मैक्सिमम पाया जाए। ओके, इसमें जो क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में वो 6 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो व्हाट डू यू मीन बाय इंडिफरेंस कर्व, राइट इज मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपको सभी कैरेक्टरिस्टिक्स में डायग्राम से बताना है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, हर डायग्राम का एक्सप्लेनेशन भी करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जैसे यही डायग्राम है, अब यहाँ पर आप मान लीजिए इस डायग्राम में हम देखते हैं अब देखिए इस डायग्राम में हम मान लीजिए आपको एक सिचुएशन में मान लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन आपको करना है। सो आई एम टेकन, या आप इसे लिखेंगे ऑन ओ वाई एक्सिस गुड एक्स इज गिवन, ऑन ओ वाई एक्सिस good y is given, mn is a budget line, mn आपकी एक बजट लाइन है, and ic is a indifference curve where the budget line touch on the a point, budget line touch the indifference curve, this is the point where consumer is in equilibrium। अब मैं आपको एक सिचुएशन बताती हूँ कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम चेंज भी हो सकता है इफ योर इनकम डिक्रीजेस। यहाँ पर हमने देखा M1 N1, यानी यदि आपकी इनकम डिक्रीज हो गई, ठीक है। अब आप सोचेंगे इनकम कैसे डिक्रीज हो गई, जैसे अभी आप देख रहे हैं कोविड के कारण लोगों को पूरी सैलरीज नहीं मिल रही है, ठीक है, तो यहाँ इनकम क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। अब जब इनकम डिक्रीज हो गई है, मान लीजिए अभी हमने एग्जांपल लिया था इफ योर इनकम इज 100, अब हम कह दें कि नहीं आपकी इनकम तो क्या हो गई है भाई 50 रुपीज ही रह गई है। अब प्राइस ऑफ एक्स तो आपका 5 है और प्राइस ऑफ वाई आपका 10 है, ठीक है। तो जहां 100 रुपीज थी तो आप 20x खरीद पा रहे थे, अब आप 50 जब रुपीज आपकी इनकम रह गई तो आप केवल 10x खरीद पाते हैं, और केवल अगर y की बात करते हैं तो केवल 5y खरीद पाते हैं। तो अब आपकी बजट लाइन क्या हो गई, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई। तो जब आपकी बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाती है तो आप इस A पॉइंट पे नहीं रहते, आपको एक नया इंडिफरेंस कर्व देखना पड़ता है, वो जहां इस बजट लाइन को टच करता है B पॉइंट पर, आप वही सेटिस्फैक्शन या आपका कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन वहीं पर होता है। इन केस इफ योर इनकम इंक्रीजेस, हो सकता है आपकी इनकम बढ़ जाए,
ठीक है, जब आपकी इनकम बढ़ गई तो आप यहाँ सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, आपको लगेगा अभी तो मैं और खर्च कर सकता हूँ। नाउ द सेटिस्फाइड पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, वहां पर जहां IC3 आपका टच कर रहा है C पॉइंट पर। सो एज योर इनकम इंक्रीजेस, योर जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आल्सो शिफ्टेड टू द राइट वन। इफ योर इनकम डिक्रीजेस, योर सेटिस्फैक्शन और योर जो आपका पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, वो शिफ्ट कहाँ हो जाएगा, लेफ्ट वन। तो इस तरह से आप डायग्राम का भी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ जो क्वेश्चन आएगा आपका 6 मार्क्स का, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिफरेंस कर्व, राइट इट्स मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो क्या होगा, वहां पर आप जो कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं 5, उसके सबके डायग्राम बना के एक्सप्लेनेशन करेंगे। और यदि इसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो व्हाट डू यू मीन बाय MRS, व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, व्हाई इट इज डिमिनिशिंग, तो आपको न्यूमेरिकल बनाकर और फिर उसका एक्सप्लेनेशन करना है डायग्राम के साथ। 4 मार्क्स में क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आपको क्या करना है, डायग्राम के थ्रू भी सिचुएशन को क्लियर करना है, ठीक है। तो इसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है और कभी कभी 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। तो बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ओके। आज इतना ही करेंगे, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, ओके, थैंक यू।